Bengali is so easy to understand if you know Hindi. If you know Marathi, Konkani is so easy to understand. And if you know Konkani, you are one step away from learning Tulu. Similarly, if you understand Kannada, you are so close to understanding Telugu. This close to understanding Tamil. It is all, we are just one step away from each other. முந்திரி திராட்சை முழுசா இருக்கு. ஆச்சி பாயாசம் மிக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம். Namaste Dibang ji, so happy to be here. So happy to be. Okay, we are going to play Who's Going to Start. नहीं, हमारी बात हुई थी कि इसके आगे भी ये कुछ तारीफ करेंगी, पर कर नहीं रही हैं. नहीं, मैं नहीं करूंगी आपकी तारीफ. मैं आपको बता दूं, जो हॉरोस्कोप बनाते हैं ना बच्चे का, जन्म कुंडली, सो मेरी बनाई गई थी. And my horoscope said that I'd grow up to be a journalist. This is the closest I have come to being one. I'm almost a journalist today. My God, with Mr. Dibang, the great, the legendary Mr. Dibang. I'm so nervous. थैंक यू, यही था, थैंक यू. आप भूल जाते हो बीच में. हाँ, ये डिसाइड हुआ था. ये देखिए कि श्रद्धा जैन के लिए तालियां जरूर बजाइए. थैंक यू. और इन्होंने कहा कि अगर तालियां बजेंगी तो ये जो करती हैं, जिनमें ये कमाल करती हैं, वो और करेंगी. और अगर तालियां नहीं बजी, ऑडियंस भी सो रही होंगी, तो ये भी वैसे ही रहेंगी. ये हमारी डील है. और आपने मेरे सुर में सुर मिलाया है. थैंक यू. और This is a great reference to my work, latest work, Mile Sur Mera Tumhara. Thank you so much. I'm just so flattered to think that आपने देखा है वो वीडियो. मेरा काम आपने देखा है. Thank you very much. So good to know. So good to know. Mile Sur Mera Tumhara was that piece that I did as part of my stand-up tour. Was I think मैं वो piece करने से पहले मैं काफी देश घूम रही थी. I was traveling across. I've been away from India for 6.5 months. So the absence makes the heart grow fonder वाला चीज़ हो गया था. And I was missing India so much. और tour खत्म करके आते आते इंडिपेंडेंस डे आ रहा था. सो आई थिंक काफ़ी देश प्रेम एंड ऑल दैट वाज हैपनिंग इन द कंट्री सॉर्ट ऑफ पुट दैट पीस टुगेदर. तो हमारा काम ऐसा है ना कि वो बनते बनते बन जाता है. ऐसे बैठ के लिखने वाला प्रोसेस नहीं है. सो वो बन गया था वो पीस भी. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स. माई गॉड, सुपर्ब. या एंड दैट्स व्हाई आई डोंट नो व्हाई मुझे ये नॉर्थ साउथ डिवाइड वाले सेशन में क्यों बुलाया गया है, जबकि आई एम ऑल अबाउट नॉर्थ साउथ वन. पर आपने ये नॉर्थ साउथ डिवाइड वाले सेशन में मुझे इनवाइट किया है. तो ये कैसे वन हुआ, कैसे चला? बिकॉज मेरे लिए तो इसमें कौन सी लाइन बहुत इजीली आपको आई और कौन सी लाइन थोड़ी? सारे आई टेल यू, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट बहुत रिसेंटली सुनाई भी पड़ा है मुझे. आई ग्रो अप इन मुंबई एंड आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई टीचर्स एंड माई स्कूल. बाय डिज़ाइन है या बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं, लेकिन मेरे टीचर्स जो है ना, आई हैव हैड टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. I have had, my history teacher was a Bengali who would say government and Panchayati Raj, government by the people, for the people, of the people. ये मेरे geography teacher थे. I had my English teacher was somebody who had a very thick Malayalam accent, who would say things like Shakespeare's Midsummer Night's Dream is a romantic comedy. And we would all think, oh, romantic comedy. And I had math teachers who had thick South Indian accents, who would say things like polynomial. And I had Maharashtrian teachers who taught me Hindi. So they had different intonations. So I had a very thick Marathi accent when I was talking in Hindi. So I have seen so many colors and flavors of India in school. तो मेरे लिए इंडिया कभी एक कलर का था ही नहीं. And hence for me, all of I think neutral English accent मैंने बहुत late अपने life में देखा है. I have only seen thick Indian accent. हमारे PT सर पंजाबी हुआ करते हैं. इनफैक्ट मेरा नाम टीचर्स ने ठीक से नहीं लिया है. My English teacher would call me Shraddha. My PT teacher would call me Sharda. So I have grown up hearing all these beautiful accents. My Hindi had so much Gujarati growing up. So मेरे लिए काफ़ी ये सारे कलर्स जो हैं होमोजीनियस मिक्स हैं.
कट टू मिले सुन मेरा तुम्हारा and hence, कट yeah. टू द पार्ट जिसमें वो बंगाली आ जाते हैं. Oh, Bengalis, I know Bengalis to be the sweetest people with a lot of patience and not in a hurry, enjoy life and very easy to understand. अगर आपको हिंदी आती है and you tell me you can't understand Bengali, that's not true because Bengali is so much Hindi. You take any Bengali song, you don't have to try very hard to understand what it means because there is so much Hindi but said with a whole lot of love and a whole lot of rounding off a lot of words. That's Bengali. যদি দেখার ইচ্ছা হয় তোমার নিঠুর মনে লয় কালিন্দির ঘাটের আইসা দুপুরের সময়. What's not to understand in this line? দুপুরের সময়. Samay becomes সময়. Dopeher becomes দুপুরের সময়. So Bengali is so easy to understand if you know Hindi. If you know Marathi, Konkani is so easy to understand. And if you know Konkani, you are one step away from learning Tulu. Similarly, if you understand Kannada, you are so close to understanding Telugu. This close to understanding Tamil. It is all, we are just one step away from each other. And that's why Mile Sur Mera Tumhara never seemed like a song that has all these languages को समझ ही नहीं आ रहा है मुझको. पूरा गाना समझ में आता था हम लोगों को. And Bengali portions were my favorite. And metro train ही पहले वो Bengali portion में देखा था हम लोगों ने. And people coming out of the train and my father would say ये metro train है ये सिर्फ वहाँ पे है यहाँ पे नहीं है. And would say wow बंगाल तो कितना आगे है हम लोगों से कोलकाता. And how I loved how the entire song's pace slowed down when the Bangla portion came. वहाँ तक सब तेजी गा रहे हैं. Like Gujarati is also so fast. And वो थोड़ा गुस्से में भी देख रही हैं कि इससे कम नहीं गाऊंगी मैं. You know? So when the Bengali portion comes, the entire song slows down and the video is slow motion. And they go, Tomar shur modir shur srishti kar hai kya shur. और फिर एक बार आता है वो गाना. And I would be wow, ये लोगों ने तो एक ही लाइन को दो बार गा लिया. How efficiently they have managed. मतलब twice they have sung the same song. Very, very well done. And the Gujarati and all other portions are sort of running to save time. मले सूरजो तारो मारो बने आपड़ो सूरनी राड़ो. And all other languages, but Bengali took its time and said, time लगता है कुछ भी अच्छा बनाने में और हम लोग टाइम लेंगे अपना. नहीं मैं भी लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा बोरिंग सा लगता हूँ पर मेरे मन में भी है कि मैं जिंदगी में कभी ना कभी तो एक बार दिबंग जी आप बहुत ही आला कॉमेडियन बन सकते हैं बिकॉज आपको ना सबके अंदर की बात पता है. मैं देख रही थी, आई वॉज वॉचिंग द स्ट्रीम एंड आई वॉज लुकिंग एट योर फेस एज यू आर इंटरव्यूइंग एवरीवन. आई थिंक आपके अंदर एक अलग ही माइंड वॉइस चल रहा है बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑल वर सेइंग. सो आई थिंक अगर वो माइंड वॉइस पे माइक्रोफोन लगा दिया जाए तो काफी मजेदार चीजें आएंगी. अच्छा ये तो ठीक है पर पैसा मिलता है कि नहीं? ओह बहुत. व्हाई नॉट? देयर इज ट्रम. आप बताइए एक चीज रोटी कपड़ा और मकान के बाद विच इज द वन थिंग एवरीवन नीड्स इन देयर लाइफ? एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट सबको चाहिए. इमेजिन अ कंट्री लाइक इंडिया विथ सो मेनी लैंग्वेजेस. हर लैंग्वेज में मूवी इंडस्ट्री है हमारे पास, हर लैंग्वेज में स्टैंड अप कॉमेडियंस है. क्यों कोई एक ही लैंग्वेज में सारा एंटरटेनमेंट? बिकॉज पीपल वांट सो मच एंटरटेनमेंट. देयर आर ऑल दीज OTT प्लेटफॉर्म्स. फिर भी पीपल आर वॉचिंग माई रील्स. ऑल ग्रेट एक्टर्स आर डूइंग वेब सीरीज. फिर भी लोग मेरे रील तो देख ही रहे हैं. दिस इज द काइंड ऑफ डिमांड दैट्स देयर फॉर एंटरटेनमेंट. और दिबंग जी जिस दिन आप डिसाइड कर लिए ना कि मैं बनूंगा स्टैंड अप कॉमेडियन, हम अपनी दुकान बंद करके निकल जाएंगे 100%. Neither I can compete with you on your vocabulary, neither I can compete with you on the hard truths you know about India. तो चूंकि हम लोग स्टेज पर हैं तो मैं पूछ ही लूं कि कितना मिलता है.
ये वैसे तो मेरा ITR वगैरह बहुत क्लियर है, डरती नहीं हूँ मैं बताने से, बट फिर भी मेरी मम्मी कहती है कि पैसे के बारे में बात करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट इज गिनना अगर नहीं चाहिए, आपकी- पैसे गिनना नहीं चाहिए, बस आते रहे। ओके, आपकी मम्मी ऐसा कहती हैं तो उनको नमस्ते है, और आप ऐसा कह रही हैं इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि हो क्या गया है कि आप इंजीनियरिंग में थी, IT में गई। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि 3-4 और लोग IT के भाग के इधर आ रहे हैं। हाँ, क्या आपको वहाँ इतना बोर कर देते हैं लोग, आप बड़े परेशान रहते हैं, या इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं कि आप लोग हंसते रहते हैं और हंसते हंसते स्टेज पे चढ़ जाते हैं? होता क्या है? ये ना टेक्निकली मैं आपको बताऊँ, इंजीनियर्स ना अगर आप देखें तो वी हैव अ वेरी बिहारी माइंडसेट। हम काम के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हम अपना शहर, स्टेट, ब्रांच, स्ट्रीम सब छोड़ सकते हैं और हमें कहीं भी ले जाइए मजदूरी कराने के लिए, हम मेहनत करेंगे। सो टेक्निकली अगर आप कहें तो आई एम आइडेंटिफाई एज अ बिहारी। आप कहीं भी ले जाइए, काम के लिए कहीं भी बुला लीजिए, मैं मजदूरी करने के लिए रेडी हूँ। सो इंजीनियर्स हैव दैट माइंडसेट, कहीं भी हमसे काम करा लो। और इसीलिए मैं नहीं समझती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हरा पाएगा, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज नॉट हैव द बिहारी माइंडसेट वी हैव। सही बात है। ये बताइए कि आपको ऐसे बैठे बैठे आ जाता है? मैं देख रहा था, आप यहाँ देख रहे थे जो पिछला चल रहा था एक बातचीत टूरिज्म पर, आपको ऐसे बैठे बैठे मटेरियल दिखाई देता है? इधर भी मटेरियल दिख रहा होगा आपको? नहीं, हम ऐसे ही आप जैसे पत्रकारों का चारा बन जाते हैं। सो हमें बस ये एक वो लगाना होता है कि दिबंग जी का चारा मत बन जाना तुम कहीं। और अभी जो हर लोग काट काट के, रील काट काट के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहीं भी कुछ भी चिपका रहे हैं, सो बस एक उस बात का ध्यान रखना होता है हमने, बाकी तो। और कब ऐसा लगता है कि ये जो बैठ गया, या कहीं कि ऐसा है कि ये तो सो ही गया, ऐसा चलता है कि हर किसी को आप खड़ा करके रवाना? बिल्कुल, जैसा रिस्क हर इंडस्ट्री में है। किसी को समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता है, कोई सो जाता है, कोई ताली बजाता है, कोई हंस देता है। आई थिंक जैसे एक गाना सबको पसंद नहीं आता, एक एक्टर सबको पसंद नहीं आता, एक जोक या आपका स्टाइल सबको पसंद आए, ये जरूरी नहीं है। बट यू नीड टू फाइंड जस्ट द एनफ नंबर ऑफ पीपल हु विल बाय टिकट्स फॉर योर शो एंड यू विल मेक मनी। उतने लोग अगर मिल जाते हैं, बस हो गया। देयर इज ओनली वन शाहरुख खान नाउ, तो अब तो शाहरुख खान भी और नहीं बनेंगे। लाइक यू नो, नाउ एवरीबडी हैज टू फाइंड देयर लिटिल मार्केट एंड वहीं अपनी दुकान खोल लो, वहीं दुकान चलाओ, शाम को बंद करके घर चले जाओ, बस। एंड डिड यू एक्चुअली मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी? ऐसे कैसे कह रहे? फोटो है मेरे पास। अच्छा, दो बार I have met. Second time, though, he said, "Ayo." Yeah? I don't know how he remembers. So he saw me and he said, "Ayo." I said, "Are you not happy to see me, or you just know my handle?" But he looked like he was very happy to see me, and he told me, "दूसरी बार मिल रहे हैं हम." And I said, "You remember the first time I met?" Oh, too good, too अम्मा good. को बताया और अम्मा को विश्वास हुआ कि ये मिलके आई होगी? अभी फेंक रही है ऐसे? नहीं, अभी तो मम्मी थी नहीं ये सब देखने के लिए, बट आई थिंक somehow from wherever she is, she makes देख रही things हूँ ऊपर happen. से। Yeah, good, yeah. प्रधानमंत्री जी ने और क्या बोला? एक पॉलिटिकल पत्रकार इससे ज्यादा और क्या पूछ क्या सकता ही है? पूछ सकता है, लेकिन कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री से मिलके? आपने कैसा महसूस किया? आई थिंक सेकेंड टाइम तो उन्होंने मुझे, लाइक पहली बार मैं मिली थी उनसे तो उन्होंने कहा था वेरी गुड, और आपको प्रोत्साहन देना चाहिए महिलाओं को, यू नो, इस फील्ड में आने के। सो उन्होंने पीठ थपथपाई मेरी पहली बार। सेकेंड टाइम उन्होंने अवार्ड दिया, तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं तीसरी बार मिल लूँ उनसे, पता नहीं मुझे टिकट ही दे देंगे शायद। आई डोंट नो, मैं शायद आई डोंट नो राज्यसभा में मिलूंगी आप लोगों से। आई एम जोकिंग, इसको कट कर देना, पता नहीं ये मुश्किल में डाल देगा मुझको। नहीं, बट आई एम जस्ट जोकिंग। या वाज वेरी नाइस। एंड आई थिंक सेकेंड टाइम जब हम मिले तो वो खुद उन्होंने ही स्टेज पे इतनी स्टैंड अप कॉमेडी की, मतलब हम लोग सबको लगा था वाओ ये खुद ही इतने अच्छे जोक्स मार रहे हैं, मतलब फिर तो हमारी तो क्या ही औकात है। लाइक ही वाज सो फनी ऑन स्टेज द सेकेंड टाइम व्हेन आई मेट हिम। आई थिंक इट वाज जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, अब की पार 400 पार वाला। ये जो पार्ट बोला ना, इस पर आप ट्रोल होंगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से। ये क्या? वाला जो आपने पार्ट बोला क्या? ना कि कौन वो जोकर लग रहे थे मुझे स्टेज नहीं नहीं, वो बहुत जोक्स कर रहे थे। हाँ, मतलब ये जो आप ही वाज उनको- सो फनी। आप जो और नहीं उनको- नहीं, मैंने तो उनको कहा भी, आई ये टोल्ड जो हिम आप आल्सो, उनको जोकर बता रही है ना, ये ठीक नहीं है। ये है ना, ये आप जो वर्ड्स डाल रहे हैं मेरे मुंह में, ये जो आप कर रहे हैं, ये पत्रकार ये का काम है। नहीं, ये आप अगले जन्म में चिपकली बनेंगे, देखना। यू विल बी अ लिजर्ड
इन अगले जन्म. Don't do this. मैंने ये इनफैक्ट मैंने उनसे भी कहा था कि you are very funny tonight. I told him, I think you have a very spontaneous humor. अब ये सब वर्ड्स मत घुसाइए मेरे मुंह के अंदर कि आपने ये कहा कि जोकर का आपने प्रधानमंत्री जी और जोकर. प्रधानमंत्री के कार्यालय के लोग ये बोल ये रहे हैं, प्लीज मैं नोट बिल्कुल नहीं कीजिए. बोल रहा ये दिबांग जी, दिस इज वेरी रॉन्ग. हूं. देखिए, अगर आप कॉमेडी को देखें, स्टैंड अप कॉमेडी के देखें, तो एक तरीके से आप लोग आ गए हैं स्टेज पर, सारी फ्लैश लाइट्स आप पर हैं और आप लोग टहल रहे हैं, एक्चुअली देख रहे हैं हर चीज़ को उठा उठा के कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं. जैसे माँ बहन की गाली भी इतने आराम से दे सकते हैं, जैसे इस तरह के पॉलिटिकल जोक्स भी कर सकते हैं. और उस जोक्स की वजह से जब नेता लोग नाराज़ हो जाएं, बड़े नेता लोग, हम कोने से जाके चुपचाप बैठ भी सकते हैं और वहाँ भी कुछ कुछ कर सकते हैं. कुणाल कामरा की मैं बात कर रहा हूँ. तो एक तरीके से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन हैं, आपके अच्छे दिन आ गए मतलब. अब ये अच्छे दिन का तो पता नहीं. आई थिंक आप अगर अच्छे मन से और एक अच्छे उद्देश्य से कोई काम करते हैं, आई थिंक द आफ्टरमैथ ऑफ दैट जॉब, हाउ इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इज वेरी क्रिटिकल. आई थिंक there is a very high level of honesty that is required of a stand-up comedian to be successful. वरना आई थिंक ऑडियंसेस बिकम सो इंटेलिजेंट अब तो कि वो पकड़ लेती है कि आर यू प्लेइंग टू द गैलरी और आर यू रियली बीइंग ऑनेस्ट. ये आपके खुद के विचार हैं, दिस इज व्हाट यू रियली फील एंड दीज आर योर ऑब्जर्वेशंस. और या आप मतलब यू आर प्लेइंग टू द गैलरी. ऑडियंस इज वेरी वेरी स्मार्ट नाउ एंड आई थिंक यू हैव टू डिसाइड आप जो बोल रहे हो इसमें कितनी सच्चाई है और इसके पीछे का इंटेंट क्या है. आई थिंक इंटेंट इज एवरीथिंग. आप जैसे अभी आप कह रहे हो ना कि आपने प्रधानमंत्री जी को जोकर का, इसके पीछे आपका इंटेंट क्या है दिबांग जी? इंटेंट. सो ये intent is very important. Why are you saying the things that you're saying? Is it just a rage bait? Is it just to get attention? या आपके पास कोई मुद्दा है, एक insight है. Insight is very important. बिना insight के for the sake of it गालियाँ, I don't think they take you very far. But I don't know. I am very new in this fields. But yeah. एक और बात है कि जैसे जब आप स्टेज पे जाती हैं तो धक धक होती है दिल में, बहुत. क्योंकि शबाना आजमी मुझको एक बार बता रही थी कि करीब 10-15 सेकंड तो बहुत दिल धड़कता है तेजी से, उनको समझ भी नहीं आता वो क्या करती हैं, पर धीरे धीरे वो सब जम जाता है. हाँ. क्या ऐसा आपके साथ भी है? कैसा आप फील करते हैं जब? हर बार यही लगता है कि दिस माइट नॉट वर्क. एंड आई थिंक आधी तैयारी ये होती है कि इफ इट माइट नॉट वर्क, इफ इट डज नॉट वर्क, डोंट किल योरसेल्फ. हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगा ये. सो मैं स्टेज पे, बिफोर आई कम ऑन स्टेज, बिफोर माई शोज, द ओनली थिंग आई टेल माई सेल्फ इज दे आर ऑल माई पीपल. और अगर पसंद नहीं भी आया तो माफ़ कर देंगे, टिकट का पैसा वापस नहीं मांगेंगे, बिकॉज दे आर माई पीपल. मैं इतना अपने आप को बोल के आई वॉक ऑन स्टेज एंड विल से विल सी वॉट हैपन्स. बट दिस मच आई टेल माई सेल्फ दैट दे आर ऑल माई पीपल, ये मेरे लोग हैं एंड दिल फॉरगिव मी इफ आई डोंट डू अ गुड जॉब. इतना मैं अज्यूम करके चलती हूँ. याददाश्त कितनी तेज होनी चाहिए इसमें? बहुत. स्पेशली जब आप भूल जाते हो आपका मटेरियल, तब तो याददाश्त कुछ और इंस्टेंटली याद आ जाए टू सॉर्ट ऑफ, ताकि आपको पता नहीं चले कि मैं भूल गई हूँ. ये ज़रूरी है याददाश्त सही रहना. इनफैक्ट ऑल्सो टू रिमेंबर वॉट यू हैव सेड इन द पास्ट. यू नो, कभी कुछ कहा हो और फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर लो एंड लोग तो पता नहीं 10-10, 15-15 साल पुराने ट्वीट्स निकाल रहे हैं. 10 साल पहले आपने ये कहा था, अब आप ये कह रही हैं. हाँ, मैं बदल चुकी हूँ. यू हैव टू बी रेडी टू फेस क्वेश्चंस लाइक दोस. या तो ऐसा कभी हुआ कि आप स्टेज पे गई हैं और आप सुना रही थी और एक सुना लिया और उसके बाद आप अगला भूल गई बिल्कुल, और आपने फिर क्या किया? नहीं, मैं भूली नहीं. अब मैंने पूरा अपना मटेरियल करा और कोई हंसा नहीं, ये हुआ है. अच्छा. या सब याद था मुझे, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ किसी को फनी लगी ही नहीं. एंड आई रिमेंबर दिस वेरी वेरी वेल. आई वॉज परफॉर्मिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ 13 पीपल, 13 लोग. और ये जो 13 लोग थे, मैं कंपनी वगैरह का नाम नहीं लूँगी, दिस वॉज फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी. और जो 13 लोग थे ना, ये लोग, ये इतने
अकम्प्लिश्ड लोग हैं, मतलब अगर ये शायद मतलब इतने ऊंचे स्तर पे उन्होंने काम किया, आई थिंक they would have all known Dr. Manmohan Singh ji, and Dr. Manmohan Singh ji would have known all of them. Itne accomplished people. And I was invited to perform for them. और मैं गई स्टेज पे और यू नो इट वाज सच एन इनफॉर्मल गैदरिंग, तो कोई एमसी नहीं था जो ये कहे प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्रद्धा, ऐसा कुछ हुआ नहीं. उन्हें कहा आओ, और मैं चली गई स्टेज पे और मैंने शुरू किया. एंड वो सारे मुझे देख रहे थे आधे घंटे तक और इंतज़ार कर रहे थे कि हंसी कब आएगी. और आधा घंटा ख़त्म हो गया, मेरा सारा मटेरियल ख़त्म हो गया. एंड फिर मैं अपने रूम में गई और मैं पूरी रात रोई. आई क्राइड ऑल नाइट दैट यू नो आई हैव नॉट डन अ गुड जॉब. और अगले दिन उन 13 लोगों में से वन ऑफ द जेंटलमैन सेंट मी एन ईमेल, और उस ईमेल में उन्होंने लिखा दैट आई सॉ दैट यू वर वेरी ओवरवेल्म्ड विथ हु यू वर स्पीकिंग टू. Because like I said, I mean, achievers like, I have never met anyone like these people. So I was very overwhelmed कि मेरे सामने ये जो लोग बैठे हैं कितने दिग्गज लोग हैं. And he said, I could sense you were very overwhelmed with who we are. But please remember, we came here for you. And you earned your place that evening. Always remember that when you are invited to perform, you have earned that place. तो ऑडियंस से कभी ओवरवेल्म मत होना. तुम स्टार हो, तुम अपनी बात सुना के जाओ बेझिझक होके. आई थिंक दैट वाज सो काइंड ऑफ समवन ऑफ दैट स्टेचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ ह्यूमंगस कंपनी, टू टेल मी दैट व्हेन यू हैव द स्टेज यू हैव अर्नड योर प्लेस एंड डोंट थिंक अबाउट हु इज इन फ्रंट ऑफ यू. टाइम बहुत तेजी से दौड़ रहा है जी. आपके झोले में जो बिल्कुल नया पक रहा है अभी, और जो आप बहुत बड़े शो में कहीं सुनाने वाली हैं, चूंकि आप एबीपी न्यूज पर नहीं, हैं, अभी तो बहुत आधा अधूरा है जो पक रहा है. हाँ, लेकिन तो कोई जो अभी हाल में पका हो और जो आप शेयर करना चाहती हो, चाहे खराब वाला भी हो पर ताज़ा हो. नहीं, आपके सामने तो बहुत मुश्किल होगा आधा पकाया हुआ. बिकॉज आप खुद भी सोच रहे हो स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का, तो अभी तो कंपटीशन वाली फीलिंग भी आ रही है आपसे. नहीं, मैं मुझे तो सोच रहा था कि उन 13 बूढ़े लोगों ने पैसा कितना दिया होगा. मैंने इनवॉइस नहीं दिया उनको, मैंने पैसे नहीं लिए. अच्छा, उनसे पैसा नहीं लिया. खैर, अब इस पर आते हैं. कितनी अच्छी है श्रद्धा. हाँ, इतनी अच्छी है श्रद्धा. अगर पर इसको ना भूलें कि जो कौन सा है कोई ताज़ा जो आप सुनाना चाहें, ताकि नहीं लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी. थोड़ा पुराना. नहीं, आई विश आई हैड, बट नहीं. थोड़ा और पुराना, मिडिल क्लास पर कुछ. मिडिल क्लास तो मैं आजीवन मिडिल क्लास ही रहूंगी, चाहे जितनी लक्ष्मी जी की कृपा मुझ पे हो. बट आई डोंट नो, आई थिंक मेरे शो पे जो चीज़ें मैंने की हैं वो आई एम वेरी स्केयर्ड टू टॉक अबाउट दोस, क्योंकि मेरे शो पे मैंने बहुत I have gone to a lot of subjects like religion and all that. That might be a little too controversial for this stage. नहीं, भगवान और ईश्वर को लेके मेरे थॉट्स जो हैं मैंने काफ़ी अपने शो पे शेयर किए हैं, जो शायद यहाँ के लिए अप्रोप्रिएट ना हो. Yeah, but I think my next set will have feature you, Dibang ji, and being with a journalist. And how journalists can make you feel will be the centerpiece of my next set. कैमरामैन अरुण के साथ देबांग और श्रद्धा. कई बार जब इंटरव्यू करते हैं तो ये जो साइलेंस है ना, ये रेडियो साइलेंस, ये बहुत डेंजरस, बहुत लोड डालता है. ये बहुत ज्यादा. आई अग्री. और आई थिंक इस पे ये कॉमेडियंस कभी कभी एक ट्रिक यूज करते हैं कि अगर हमें भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम ऑडियंस से कोई भी सवाल पूछ लेते हैं. कितने शादीशुदा लोग हैं आज ऑडियंस में? गिव मी अ चीयर. हाउ मेनी मैरिड पीपल आर देयर? ऐसे ऑडियंस से थोड़ा टाइम पास कर लो, तब याद आ जाता है हाँ तो मैं क्या कह रही थी. यस, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग. So we do that a lot. अच्छी बात है कि बात करने को अभी बहुत है, लेकिन वक्त हमारे पास इतना ही है. Yes, we have countdown has reached 0. खत्म हो गया. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.
முந்திரி திராட்சை முழுசா இருக்கு. ஆச்சி பாயாசம் மிக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம்.